Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In previous lecture we have studied about three means of transport like pipelines, air travel and sea travel. In all previous lectures we have studied only one aspect of this chapter, and that is transport. But today we are going to study the second aspect of this chapter, which is communication. Though we have studied the basic terminology of transport and communication and we have seen its definitions, but today, so students, in this slide we are going to study about communication in detail, in which we will see that what are the particular things that is included in the term of communication, or what are the particular things that we can say that these are the things that when this happen, communication will happen. Alright, so what is communication? Communication is a process of exchanging, but the question arises that exchanging of what? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सचेंज होंगी? So let's see this. So students, communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings and emotions. When countries or individuals exchange information with one another, that is included in communication. That becomes communication. When two individuals or more than two individuals share their point of view or ideas, that is also the communication. When the persons share their thought, so it's all about sharing. Communication is all about sharing with one another. इट्स नॉट अबाउट दैट कि एक बंदा जो है उसके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसके अपने तक है, वो किसी को नहीं बता रहा. कम्युनिकेशन बेसिकली जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो हम बात करते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. ऑलराइट, सो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस की एक्सचेंजिंग होती है. ये सब एक्सचेंज हो रहे होते हैं. सो कम्युनिकेशन इज़ अबाउट सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, sending and receiving information or the transmission of information from one party to another, as we have already discussed. तो communication क्या है कि information हो, ideas हो, thoughts हो, feelings हो या emotions हो, इनको send करने और फिर इनको receive करना. तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि that transmission of information from one party to another is called communication. Alright? Now, through. अब मैंने यहाँ पे थ्रू इसलिए लिखा है क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट आर द स्पेसिफिक सोर्सेज, व्हाट आर द स्पेसिफिक मीन्स दैट वी यूज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. ऑलराइट, लेट्स सी दिस. सो स्पीच इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब स्पीच कैसे कम्युनिकेशन है? बात करना एक दूसरे से. लाइक इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है. अब सेंडर कौन है? जो स्पीच कर रहा है, और रिसीवर कौन है? जो रिसिपिएंट्स हैं, जो ऑडियंस हैं, जो सेंटर की बात सुन रही हैं. सो द स्पीच इज़ वन ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. Communication can be held through the speech. Second one is signal and technology. So technology plays most important role in our lives. Like you have mobile phones, you have laptops or any other technology. So through technology you can communicate with one another no matter where you live. Like if you are living in Pakistan, you can communicate the people living in America. So this is how you can communicate with one another. Now writing. You know what? Writing is one of the formal means of communication. फॉर्मली हम राइटिंग को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. लाइक कंपनीज कम्युनिकेट with one another through writing a letter, through reports, through any other material. So the newspaper and official journals, these all are the means of communication, क्योंकि ये written form में होती है. अब न्यूज़पेपर कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस कि न्यूज़पेपर में पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ होती है.
इट्स नॉट अबाउट योर पर्टिकुलर कंट्री, इट्स नॉट अबाउट योर पर्टिकुलर एरिया, बल्कि उसमें एक फुल फ्लेज होती है पूरे वर्ल्ड की न्यूज़. नाउ बिहेवियर. सो हाउ बिहेवियर इज़ कंसिडर्ड एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. बिहेवियर कैसे, जैसे लेट्स सपोज एक एडल्ट है और एक बच्चा है, एक चाइल्ड है. अब वो अपने बड़े से जब कम्युनिकेट कर रहा है, तो जब पेरेंट या कोई भी एडल्ट उसे कम्युनिकेट करेगा तो वो बिहेवियर्स आएंगे. अगर लेट्स सपोज बच्चा रिलक्टेंट है, वो कोई भी काम नहीं कर रहा, या वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिलक्टेंसी शो कर रहा है, अब जो एडल्ट है या जो पेरेंट है वो उसका बिहेवियर देखेगा और फिर उसके बिहेवियर को देख के उसे कम्युनिकेट करेगा, उससे बात करेगा. सो द बिहेवियर्स ऑफ द पीपल इज़ अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. Alright. Now, here I have a picture of the process of communication in which you can see that there is a sender which sends message to the receiver with the help of channel or a medium. Medium is basically the pathway. It is a device through which sender can receive the sender can send the message to the receiver, and receiver through this channel or medium or pathway receives the message. So sender sends the message, then message goes into the channel, and then channel जो है वो फिर receiver को message receive करवाएगा. Channel then sends the message to the receiver, or in between receiver when receive the message respond back to the sender, and sender वो basically उसका जो receiver जब response अपना देगा तो that response is basically called the feedback for the sender. When sender receives the message and receiver receives it, then receiver respond back to the sender, and that response from the receiver is a feedback for the sender. So this is the whole process of communication. That encoding or decoding means, encoding means when sender sends the message, that sending of message is encoding, and when receiver receives the message, so that receiving of message is called decoding. Alright, so this is the whole process of communication. Now let's come to the advantages of good communication. इसमें हम पढ़ेंगे कि good communication के advantages क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं. ठीक है. So very first thing is keeping people in touch. अगर कम्युनिकेशन गुड है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अगर हो रही है, तो वो क्या होती है, उससे जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं या उससे जो पब्लिक है, वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपस में इन टच रहते हैं. ठीक है, उनका आपस में कम्युनिकेशन मेंटेन रहता है और वो आपस में बातचीत करते रहते हैं. ऑलराइट. सो द सेकेंड थिंग इज़ इन टच विद वर्ल्ड इवेंट्स. अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से आप वर्ल्ड इवेंट से अवेयर हो सकते हैं, आपको पता लगता रहता है, आप अप टू डेट रहते हैं दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन द वर्ल्ड. ऑलराइट, क्या चल रहा है दुनिया में, दुनिया के क्या हालात हैं, कहाँ पे क्या चीज़ कैसे हो रही है, इकोनॉमिक, सोशल, in fact every sector of life you will get updated through the good communication. All right. So the third thing is education and awareness. So one can get education and one can aware from various aspects of our society through good communication, through the means of communication. All right. Fourth thing is getting information. So there are, and we have in this modern world lots of means of communication through which we can get information to the larger extent. हम हर तरह की इंफॉर्मेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से ले सकते हैं. लेट्स सपोज इफ़ यू हैव मोबाइल फ़ोन, इफ़ यू हैव कंप्यूटर, तो उससे आप किस किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. अगर आपके पास उधर नेट है तो इंटरनेट बेसिकली प्रोवाइड्स यू द फैसिलिटी टू सर्च अबाउट एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन दैट इज़ इन द वर्ल्ड, that is happening in the world. All right. Now here I have a picture of means of communication, that how means of communication evolved. Like you can see that early people use pigeons to send their letters or messages from their destination to the required destination. फिर letters आए, पोस्टमैन आया, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आया, जो है आप यहाँ से लेटर्स फिर लोगों ने भेजने स्टार्ट किए. देन
वी हैव मोबाइल फ़ोन्स, उसके पास मोबाइल फ़ोन्स आए जिससे आप SMS कॉल्स या MMS वगैरह कर सकते हैं from one place to another or from one region to another. Then we have the era of emails, कि जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भी कहते हैं. आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन्स है, एंड इफ़ यू हैव अ नेटवर्क इन योर डिवाइसेस तो यू कैन ईजिली सेंड योर ईमेल्स विद इन अ सेकेंड. और वो ईमेल्स जहाँ पे आपने पहुँची है वो बग़ैर किसी एरर के, बग़ैर किसी डिस्टॉर्शन के और बग़ैर किसी डिलेज़ के वो वहाँ पे पहुँच सकती है. तो दिस इज़ हाउ योर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इवॉल्व्ड थ्रू आउट द पीरियड. ऑल राइट, ये चार्ट जो है इससे आपको बहुत क्लियर होगा दैट व्हाट इज़ कम्युनिकेशन टाइम लाइन और हाउ इट इज़ इवॉल्व्ड. सो अर्ली पीपल यूज स्मोक सिग्नल्स, कि वो आग जलाते थे और उससे कुछ ना कुछ सिग्नलिंग करते थे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे. और ये जो अर्ली पीपल्स थे दे ऑल्सो यूज्ड ड्रम्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. ऑल राइट, जैसे अर्ली पीपल ड्रम्स बजाते थे कि अगर उन्होंने अपनी लोकेलिटी में जहाँ पे वो रह रहे हैं उन्होंने कोई मैसेज देना है सारे लोगों को, अगर किसी को कुछ अलर्ट करना है अपनी लोकेलिटी में तो वो ड्रम बजा के करते थे. तो दैट ड्रम और दैट स्मोक सिग्नल्स और ऑल्सो वॉज ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एट दैट टाइम. देन कैरियर पिजन जो है दैट वाज आल्सो द मीन्स ऑफ ट्रांस कम्युनिकेशन. ठीक है, लोग इसके थ्रू लेटर्स या अपना कोई भी मैसेज पहुंचाते थे. ठीक है, देन वी केम टू नो अबाउट मोर्स कोड. अब मोर्स कोड कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो डैशेस और डॉट्स या साउंड या बीप्स से मिल के बने हुए होते हैं और इनको जो है वो डिकोड करना पड़ता था किसी न किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू. देन वी हैव वायरलेस रेडियो, देन वी हैव टेलीफोन, देन वी हैव फैक्स एरा, उसके बाद मोबाइल टेलीफोन आ गए, फिर हमारे पास इंटरनेट आ गया. इंटरनेट के बाद हमने ईमेल्स को भेजना, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को भेजना स्टार्ट किया इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. एंड देन वी हैव हैंड हेल्ड डिवाइसेस. ठीक है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस का मतलब होता है ऐसी डिवाइसेस जो आप अपने हाथ में लेकर पकड़ सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं विद वन हैंड or with one finger. So that these all are called handheld devices. All right, so it starts from smoke signals or drum or it goes on. ठीक है, it goes on, ये आगे चलता जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा है, you never know कि आगे नेक्स्ट क्या होगा. All right, so these all are the means of communication. Now here I have another picture in which you can see the postal system, typewriters, telephone, television, internet, cell phones, personal computer, camera, telegraph, radio. So these all are the means of communications जो commonly हम लोग अब यूज़ भी कर रहे हैं और इसमें से कुछ obsolete भी हो गए हैं, मतलब outdated भी हो गए हैं. ठीक है, जैसे टाइपराइटर्स अभी बहुत कम यूज़ हो रहे हैं, इस तरह का टेलीविज़न नहीं यूज़ हो रहा, अब हमारे पास LEDs और LCDs आ गए हैं. ऑल राइट, रेडियो अभी बहुत कम यूज़ हो रहा है. ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. ऑल राइट.